डियर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पापा, मम्मी और सोसाइटी, आज मेरा रिजल्ट आ गया और मैं फिर से फेल हो गया। इसलिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को मेरे बारे में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। 10th तक मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अच्छे नंबर आ गए तो माँ बाप तो छोड़ो, मेरे सारे दोस्त, पड़ोसी, दुकानदार, यहां तक कि मेरे अपार्टमेंट का गार्ड भी मुझे बोलने लगा, साहब आप तो साइंस ही लोगे, इंजीनियरिंग ही करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को साइंस पसंद नहीं थी। आई लव साइंस। साइंस इज ब्यूटिफुल। साइंस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन जब मैं 11th में आया तो स्कूल में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे हाफ इंटरेस्टेड टीचर्स साइंस तो पढ़ाते ही नहीं थे। पढ़ाते थे तो सिर्फ रोबोट की तरह कम से कम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करना। That killed the beauty of science, sir. और वो मेरे क्लास का फिजिक्स टॉपर, वो तो ये मानता ही नहीं था that evolution actually happened. उसको सिर्फ जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने थे। So much obsession with science, huh? Yet India hasn't won a single Nobel Prize in science since independence. Nobel Prize तो चलो awards है। India produces the maximum number of engineers per year. Yet India ranks 60th in the Global Innovation Index. That means no major innovation has happened since independence. सिर्फ आर्यभट्टा invented zero, यही करते रहते हैं। सच बताऊं तो 10th के बाद I wanted to study physics, graphic designing, coding, history, music and English literature. मेरे इंटेलिजेंस और कैलिबर का वैल्यूएशन इन सारे सब्जेक्ट से क्यों नहीं हो सकता था? क्यों मैं उन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता था जो मुझे पढ़ने ही नहीं थे? तो मैंने छोड़ दिया, कोचिंग जाना ही छोड़ दिया। कोचिंग के टाइम पे घर से निकल जाता था, पार्क में नॉवेल्स पढ़ता था, नई नई जगह घूमता था। टू बी ऑनेस्ट, आई फेल्ट फ्री। इट फेल्ट गुड नॉट टू बी अ ज़ॉम्बी। आई लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग ऑन माई ओन. I listened to some beautiful music by Mozart and Rahman. I read poetry. I taught myself Python. And I read some amazing write-ups on various topics of physics. मैं एक बड़ा कदम ले रहा हूँ. I'm dropping out. नहीं, इसलिए नहीं कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग ये लोग सब ड्रॉप आउट्स हैं. इसलिए भी नहीं कि मुझे ड्रॉप आउट का टैग कूल लगता है. और फेल होने की फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. डियर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई एम ड्रॉपिंग आउट सिंपली बिकॉज यू डू नॉट मेक एनी सेंस. अब तुम यही पूछोगे कि तुम्हें जॉब कौन देगा, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा. तो भाई कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा ना जो मेरे स्किल्स को देखे, मेरी क्रिएटिविटी को देखे, मेरे इंटेलिजेंस को देखे, सिर्फ मेरे सीजीपीए को नहीं. हाँ, फेल हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत कुछ है सीखने को, जानने को, करने को. सिर्फ मेरी मार्कशीट ही कहती है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लूंगा. Professor Yashpal, what are the characteristics of children? How do we create what you're calling as the inquiring mind? And how does science come into their framework when we talk about kids? I think children are naturally curious. In that sense, they are born scientists. They always want to find out. They keep asking questions. They also experiment. When a young baby sees a little ball, it touches it,
It rolls it around, it puts in its mouth, it's trying to find out. So this is an inherent property of humans, that they are curious. So many times I feel it's not a question of teaching, it's a question of ensuring that you do not destroy this inherent capability and build on it. You had mentioned something about discovering poetry through science. How does this happen? I How can we didn't- help children discover this kind of poetry which you see? Well, when you see so many things working together and begin to understand same principles applying, whether you play cricket, you throw a ball, you see something falling, and then you realize that's the same principles which are working exactly. You see the planets go around the earth, the sun. We begin to understand, you say almost the same principles are working, almost exactly. And when you get a little older, you find that exactly the same things work everywhere. And then you begin to wonder what a fantastic thing it is that we can see things and we can comprehend. To realize then finally that the stuff I am made of was sometimes cooked in the middle of a star, that we are all star children. Yes, that's philosophy, it has poetry, it has spirituality. And nobody can change it. So it's a spirituality which doesn't arise because somebody said so. It's a spirituality which is inherent in the structure. Einstein used to talk, when he talked of theories and ideas, he used to use the phrase musicality of theories. Musicality. So there is this higher level aesthetics involved even in science. Without that, science would be nothing. How can we translate this kind of thought? How can we nurture this with kids who are growing up when the school and the kind of regimentation in school does all to kill it? I know, I think the point is don't keep on harping about musicality and spirituality. Let it emerge automatically through understanding. But if they understand that when they're playing cricket, they're being very sophisticated. They should also understand there are a lot of things we learn to do which we don't understand how we do it. We don't know how what is named the great bowler, Vaughan, is it? The Australian bowler, Shane Vaughan. How does he bowl? There are tremendous number of principles of dynamics involved in this. We learn to do that. We don't quite understand. So it is wonderful to be able to show what is behind it. If you are a spinner, you spin the ball this way and it'll go that way. Kyun? You understand it. If you understand it, you combine it with your play, then you are on to it. You'll enjoy your cricket even more. What is the status of science teaching in India? You had mentioned about tragic consequences of centralized teaching and overloaded curriculum. Yes, sir. The problem is generally, well, I don't like to say in some of our better schools it's as good as anywhere else. But we have a problem which comes not so much through teaching, we don't allow enough freedom. It comes through this pressure to score 100%. And you can score 100% not through understanding but through mugging up. And so mugging up takes priority over understanding, and that destroys everything. Then on top of that, in order to help you get the last 0.5% of marks, you send children to coaching classes. And coaching classes is the worst thing which could happen to education, because they know exactly what to do, how to answer, what tricks to follow in order to get that 0.5 or 1 or 2 or 4 extra marks. It's ridiculous. These hurdle races are anti-education, and I think we have to somehow escape them.
And the pressure which we put right from the beginning, even on children, as if they are preparing for an IIT entrance exam. Even IIT entrance exam, I have maintained and said many a times, the stress which we put children through, I think a person who is preparing for an IIT exam, in that process, because of that stress, he diminishes. He doesn't remain as good as he would have been if we hadn't put him through that stress. And afterwards, he's not as good as he was really born. समझते नहीं है. We don't understand what kind of I think damage we are doing. And in context of science, what is happening in science teaching, learning? Now there are people, one comes across people, at least in high school level and so on, and I get questions from them which are marvelous. And many times I have to sit a long time to think how to answer them. Because when they are addressing me, they are not talking about a teacher who will give them marks, you see. So they ask questions which are very basic. I mean, even yesterday I got a question. It is from a 10th, 11th class child in Kurukshetra. She's been a very avid question writer. And she says, when I take an egg, a boiled egg, and drop it, and not boiled egg, a raw egg, and drop it, it breaks and everything spatters. But what is it that everything spreads around? Why isn't it that sometimes everything should come together and I get a whole egg? Essentially, he's talking about why is there not time reversal? Why positive time? What's the meaning of time direction? Now, this is a very basic, inherent thing. Laws, rules तो वही काम करते हैं. यहाँ negativity है, वहाँ positivity है. क्यों है? उसमें क्या होता है? Then you can go and talk about entropy and disorder increasing and the universe expanding, various things connected together. But the fact that a child of 11 years says, ये क्यों नहीं होता है? सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए, energy इकट्ठी हो जाए, all the particles should get together and can move the other way. ऐसे सवालों के लिए हम जगह ही नहीं रखते. We don't keep any room. Any child asks a question like that, teacher says, stupid, sit down. आप सबका फिर से स्वागत है. मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच. आज बात करूंगा इलॉन मस्क की. इलॉन मस्क है कौन? फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है. ये इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं. लगभग 100 साल में 2-4 लोग ही ऐसे पैदा होते हैं. इलॉन मस्क वो लोग हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं, एनविजन करके. बचपन से ही 10 साल की उम्र में ही वो इतनी किताबें पढ़ लिए थे जो एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता. 12 साल की उम्र में घर में पड़े पड़े एक कंप्यूटर से उन्होंने एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया. बचपन से ही उनका ज्यादा फोकस था कि प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोल्यूशन ढूंढना. लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. वो क्या कहते थे? एक ही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन ढूंढना बड़ी प्रॉब्लम है. तो उनकी कंपनी के अंदर अगर आके कोई ये बोल दे ना कि सर ये हो नहीं सकता, तो वो उसकी कंपनी में उसका आखिरी दिन होता था. वो क्या कहते थे? होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा. उनका मानना क्या है? फेलियर इज द ऑप्शन. दुनिया बोलती है फेलियर इज नॉट द ऑप्शन. ये मैंने पहले व्यक्ति देखे जिसका मैंने बिजनेस, एक्चुअली मैं थॉट प्रोसेस इलॉन मस्क का जानना चाहता था. आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा ना कि इलॉन मस्क की केस स्टडी दीजिए. ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है. ये वो व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए जीवित रहना चाहते हैं. इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है. हाँ, सोलर सिटी सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है. इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पे काम करती है कि एनर्जी भी पेट्रोल डीजल का चक्कर ही खत्म हो जाए, पोल्यूशन फ्री हो जाए पृथ्वी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्राइवरलेस कार्स
एक्चुअली पैरानॉइड व्यक्ति जो केवल हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने पे फोकस किया। शुरू से शुरू करते हैं। आज जो कि ये पृथ्वी पे 21वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं, ये सेल्फ टॉट प्रोग्रामर हैं और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, किताबों को पढ़ पढ़ के इन्होंने पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया। बचपन में किताबी कीड़े थे, किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने बचपन में ही एक डीप विजन, एक ऑब्सेशन, परसिस्टेंस क्रिएट कर लिया पृथ्वी को बदलने के लिए। ये कहते हैं ग्रेट लीडर डोंट ट्राई टू फोर्स अ स्क्वायर पेग इनटू अ राउंड होल। वो क्या कहते हैं, स्क्वायर को राउंड में घुसाने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम को बिल्ड करते हुए उनकी कोर इनर स्ट्रेंथ को पहचानता है। इसका अर्थ क्या हुआ, कभी भी मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाते, पेड़ पे बंदर को चढ़ाते हैं। बंदर अपने आप चढ़ जाएगा, मछली जिंदगी भर मेहनत करने पे भी नहीं चढ़ेगी। इनका मानना है कि अगर असाधारण काम कराना है टीम से तो टीम पावरफुल होनी जरूरी है। पहली बार में सही आदमी हायर करो। मीडियोकर आदमी जब उससे रिजल्ट अचीव नहीं होता तो वो ये मान लेता है रिजल्ट अचीव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हो नहीं सकता था। लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहते हैं नहीं हुआ से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट तो अचीव करना है, तरीके अलग अलग अपना लो। गोल को नहीं बदलना, तरीके बदलने हैं। गोल नहीं बदलना, स्ट्रैटेजी बदलनी है। पूरा बचपन 10-10, 12-12, 15-15 घंटे अकेले घर में बैठ के पढ़ पढ़ के इन्होंने निकाल दिए। जिंदगी भर 7 दिन काम किया, एक दिन में 15-15 घंटे काम किया। अपने आप से अनरीजनेबल, अनकॉम्प्रोमाइजेबल एक्सपेक्टेशन रखते थे। अपने आप से वो एक्सपेक्ट करते थे जो कोई नहीं कर सकता। ये क्या कहते थे, मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए। हाँ? ये नहीं बोलते आई डोंट एक्सपेक्ट टू डू व्हाट इज पॉसिबल, I want to do what is needed to be done। इनकी वर्ल्ड क्लास कंपनीज की लिस्ट में Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, जिनमें से स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी की चर्चा और हाइपरलूप की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। ये कहते थे मैं मंगल ग्रह पर लोगों को भेजूंगा, मंगल ग्रह पे जीवन चालू कर दूंगा, एक एक करके आता हूं। 95 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर इन्होंने Zip2 की शुरुआत करी और ये Zip2 में इनको जल्दी ही फंडिंग भी मिल गई। शुरू में अपने पिता के पैसे से किया, बाद में एक्सटर्नल फंडिंग मिली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ते चले गए और आगे चल के क्योंकि अभी ये यंग थे, इनका एक्सपीरियंस उतना बड़ा था नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा यार ये आदमी सीईओ बनने के लायक नहीं, उसको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया। एनीवेज बाद में टेक बबल, आपको पता है सन 2000 से पहले 99 में ये फटने की कागार पे था, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर सोचा इस कंपनी को बेच देते हैं। कॉम्पैक्ट को वो कंपनी बेच दी गई, जहां से जो पैसा मिला उसमें इनका 7% इक्विटी था, जिसमें इनको $22 मिलियन तुरंत मिला। और वो $22 मिलियन ये घर में रख करके रईस आदमी की तरह घूम सकते थे, छोटे थे, यंग थे, लेकिन वो पूरे $22 मिलियन एक एक करके उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और तुरंत चालू करी X.com। ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी, अपने आप में पहली ऐसी कंपनी दुनिया भर में। आगे चल के कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ इसका क्लैश हुआ, लेकिन उसी समय दोनों कंपनी मर्ज हो गई और उसका नाम पड़ गया पेपैल। क्या आप जानते हैं पेपैल, दुनिया भर में आज पेपैल फेमस है। उसको किसने स्टार्ट किया, उसको किसने बड़ा रूप दिया, वो इलॉन मस्क ही थे। उनका जो सीटीओ था ना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उसके साथ इनकी बहसबाजी हो गई। ये सीईओ थे, वो सीटीओ थे, और बहस ऐसा हुआ कि वो सोच रहे थे कि लाइनेक्स पे रखें इसको कि विंडोज पे लेके जाएं, और उस बहस के चक्कर में सीटीओ ने बाकी बोर्ड को अपने साथ लिया। ये भाई साहब की अभी नई शादी हुई थी इलॉन मस्क की, ये गए हुए थे हनीमून पे, पीछे से उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया और सीईओ की पोजीशन से बाहर कर दिया। बहरहाल उस कंपनी से भी बाहर हुए ये, लेकिन तब बाहर होते वक्त इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। $165 मिलियन लेके बाहर निकले तो रुके नहीं। अब क्या सोचे, मुझे लगता है कि मंगल ग्रह पे जीवन होना चाहिए। ये सोचे मंगल ग्रह पे पेड़ पौधे उगाऊंगा, उसके बाद लोगों को बसाऊंगा, पूरा जीवन बसाऊंगा। ये रशिया गए, रशिया जाके उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रॉकेट्स का अरेंजमेंट किया जाए कि जिससे मैं मंगल ग्रह जा सकूं। उन्होंने इनको प्रपोजल दिया कि $8 मिलियन लगेगा। अब ये सोचने लगे यार $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। ये रशिया में काफी नेगोशिएट करने की कोशिश जब किए तो उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वापस आ गए, वापस आके सोचे क्यों ना मैं ये कंपनी खुद ही बना लूं, तो पढ़ने लग गए। अपने आप पढ़ पढ़ के इन्होंने अपने आप उसी समय स्पेसएक्स कंपनी फाउंड करी। जिस प्रकार हेनरी फोर्ड ने कमर्शियली वायबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट करी, उससे पहले गाड़ियां बड़ी महंगी बनती थी, हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल बनाने के लिए बड़ा एक असेंबली लाइन बना दिया। बोले जैसे हेनरी फोर्ड ने उसको कमर्शियली वायबल किया, तो मैं स्पेस ट्रैवल को कमर्शियली वायबल क्यों नहीं कर सकता। $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है एक रॉकेट का। तो ये सोचने लगे कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट तैयार किए जाएं।
तो रॉकेट साइंस की इनको पढ़ाई इन्होंने फॉर्मली तो नहीं करी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि एक आदमी नेट को खोल के या किताबों को खोल के या एनसाइक्लोपीडिया को खोल के किताबों को पढ़ के खुद भी सीख सकता है, और वो इन्होंने किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को रीडिजाइन कर देगा, इसका किसी को विश्वास नहीं हुआ। कोई नहीं बोला कि मैं इसकी मदद करने, कोई नहीं आया। एक्चुअली मुद्दा यह नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, एक्चुअली मुद्दा यह था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है और उसी रॉकेट को फिर वापस भी लेके आना है उसको रीयूज करने के लिए। और वहीं जब इन्होंने पहला लॉन्च किया, इनके इंजन में आग लग गई, और वो अर्ली आग लगी, वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरी बार फिर ट्राई किया, दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, फिर ऑफ रूट हो गया, और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ, जितना भी पैसा इनको मिला था, पीछे जो इनको मिला था ना, पेपैल से जब पैसा आया था, इनको बाहर निकाला गया था, तो वो सारा पैसा इन्होंने डाल दिया, लेकिन तीनों बार में पैसा खत्म हो गया। फंडिंग एजेंसी से खत्म हो गया, नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो पैसा भी गया। अब इन्वेस्टर बोले अब कुछ नहीं बचा, अब तो कंपनी खत्म, लेकिन ये बोले एक ट्राई और करूंगा, एक ट्राई और करूंगा। क्या क्रेजी आदमी थे। ही मेड अ क्रेजी अनाउंसमेंट कि चौथा लॉन्च थोड़े ही महीनों में करने वाला हूं। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इतने छोटे छोटे गैप पे कोई लॉन्च नहीं करता, पर ये छोटी उम्र के अंदर ही बहुत बड़े, इनका रिस्क एपेटाइट बहुत बड़ा था और अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार थे। अपना घर मकान बेच के किराए पे शिफ्ट हो गए, सबके कर्जे लेकर के आखिरी बार ट्राई किया, और इस बार न केवल सफल हुए बल्कि $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया, और नासा ने अब इनको फंड किया, बोला आप हमारे लिए काम करिए। आप जानते हैं हमारा इसरो और नासा ये सरकारी पैसे पे काम करते हैं, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट सरकारी पैसे के बिना उन्होंने प्राइवेट दम पे, बिना फॉर्मल पढ़ाई के, अपने आप किताबें खोल के पढ़ के खुद ही कर डाला। ऐसा पैरानॉइड विजन अपने प्रोडक्ट और अपने क्राफ्ट को अचीव करने के पीछे ऑब्सेशन, देखिए यही मैं आज अपने देश में देना चाहता हूं मैसेज। हमारे देश में भी ऐसे कई लोग खड़े होंगे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। आज ये नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट कार्गो और सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं और रीयूजेबल प्रोजेक्ट बना दिया। अभी इसके साथ साथ इन्होंने, अभी चल ही रहा था, ये टेस्ला मोटर में भी पैसा डाल दिया। ये टेस्ला मोटर में पैसा इन्वेस्ट किए, उनकी कंपनी में घुस गए और पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। जल्दी ही इनको कंपनी का सीईओ भी घोषित कर दिया गया, और इन्होंने टेस्ला को लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के विजन को तैयार किया। जो पहली गाड़ी बनी वो अपनी कॉस्ट से डबल कॉस्ट पे चली गई। $1,09,000 की एक गाड़ी बनी। एक्चुअली ये सोच रहे थे शुरू में कि $50,000 में बन जाएगी, लेकिन जब बनाने लगे तो उसकी कॉस्ट डबल हो गई। गाड़ी बिकी नहीं, बिकने में बहुत दिक्कत आई। दूसरी बार कॉस्ट थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में एक्चुअल रीजनेबल कॉस्ट आ गई, जिससे इनकी बिक्री बहुत तेज हुई। यानी कि स्पेसएक्स में कई फेलियर आए, उससे पहले x.com में, पेपैल के टाइम पे पहले भी इनको निकाल दिया गया, उसके बाद इधर भी इन्होंने चालू किया तो इधर भी इनके कंटिन्यूअस फेलियर आते रहे। वो जो टेस्ला थी, ये जिधर गए, ये क्या बोलते हैं, फेलियर इज एन ऑप्शन। कम ऑन, क्या फेलियर इज एन ऑप्शन, लेकिन यू गॉट टू बाउंस बैक। कम ऑन, यू गॉट टू बाउंस बैक। याद रखिए, इलॉन मस्क अपने आप में केस स्टडी है, आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। कम ऑन, क्या आर्ट ऑफ फेलिंग सक्सेसफुली। आज $20 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ, दुनिया के 50 सबसे पैसे वाले अरबपतियों में इनका नाम आता है। दुनिया भर में इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया, भारत भी आ रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर के, उसकी तैयारी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात भी हुई, और आप तो जानते भी हैं आज हमारे देश में पेट्रोल डीजल गाड़ियां हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने के लिए। ड्राइवरलेस पावरफुल गाड़ियां बना रहे हैं आज इलॉन मस्क, दुनिया भर में छा गए हैं। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड, बैरियर फ्री थिंकिंग, ये जो ढक्कन लगा ना बैरियर, वही सबकी समस्या। आज एक बात कहना चाहता हूं, कुछ भी भूल जाना जिंदगी में, ये बाउंस बैक को मत भूल, हमेशा बाउंस बैक करना। I'm worried really about how much fuzzy thinking is going on in the world. Fuzzy thinking, people just not thinking straight. Consider this following example. Imagine you have a spelling bee. This is contrived, but it makes the point. There's a spelling bee, and you have to spell the word cat. Okay. So one student spells it C-A-T. Person got it right. The next person spells it K-A-T. That's wrong. You got that wrong. Okay. Third person spells it X-Q-W. Do you realize that is marked equally as wrong with the K-A-T? When you could argue that K-A-T is a better spelling for cat
than CAT. Dictionaries know this because that's how they spell it phonetically. And so we've built a system for ourselves where there's an answer and everything else is not the answer, even when some answers are better than others. So our brains are absent the wiring capable of coming up with an original thought. If you're an employer and two candidates come up looking for a job, and this is, again, a contrived example, and you're interviewing the two candidates, and you say, oh, as for part of this interview, I just want to ask you, what's the height of the spire on this building that we're in? And the candidate says, oh, I was an architect. I've majored in architecture for a while, and I memorized the heights of all the buildings on campus. I know the height of that spire is 150 feet. In fact, 155 feet tall. Okay, turns out that's the right answer. That's the right answer. And the person came up with it in seconds. That person goes away, the next candidate walks in. Do you know the height of the spire on this building? The candidate says, no, but I'll be right back. Person runs outside, measures the length of the shadow of that spire on the ground, measures the length of her own shadow, ratios the height to the shadows, comes up with a number. Runs back inside, it's about 150 feet. Who are you going to hire? I'm hiring the person who figured it out, even though it took that person longer, even though the person's answer is not as precise. I'm hiring that person because that person knows how to use the mind in a way not previously engaged. You realize when you know how to think, it empowers you far beyond those who know only what to think. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him.